Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I want to discuss about one of the topic related to the security in Azure. So the topic is service endpoints. So let's get started. See, let me open the official document first. So when you search about Azure Service Endpoint, then you will get this link, Azure Virtual Network Service Endpoints, learn.microsoft.com. So you can open this and let's discuss about this. So this is one of the topic related to the security. Security का topic है ये, and it is very interesting topic. And during the interviews, of course, this topic will be highlighted. So service endpoint, private endpoint, these two topics we will discuss in the upcoming sessions. Like in this session, I will cover the service endpoint first. Then in the next session, I will cover the private endpoint. So both have their own advantages, their complexities. So let's get started. See, what is service endpoint? So if you have any public service in Azure, if you have any public service or public endpoint, for example, you have one of the storage account. Let me just tell you the scenario. Suppose you have a storage account, and that storage account is, let's say, in Azure, and it is in UK South region. Now, you want to access this storage account. You have some data inside this. Let's say you have some container. Inside that there are blobs, and you want to access this storage data. आपको ये storage का data access करना है. So what process you will follow? We know that as a user, हमने last time क्या सीखा था? As a user, we will have our laptop. हमारे पास हमारा laptop होगा, and we have to install one of the tool called Azure Storage Explorer inside it. हमने किया भी था. Then we have some methods available to connect with the storage account. For example, we can go with we can go with access keys. Let me just make it large. Yeah. So we can go with the access keys option. We can go with shared access signature. We can go with intra-ID authentication. We have discussed these options and we have seen the practical of it as well. हमने इनके practicals भी किए थे, हमने ये discuss भी किया था. So we have three options. That is okay, and every options have their advantages, their limitations. So these all three are secure options, right? ये तीनों ही secure option है. But the thing is, when I use any one of these options, जब मैं इनमें से कोई भी एक option use करता हूँ, so these options are only helping me to establish the connection from my device to the storage account, right? मेरे डिवाइस से स्टोरेज के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में या ऑथेंटिकेट करने में, आई वुड से ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, उसमें ये हेल्प कर रहा है. So that I can access my data, I can upload something, I can modify something. So these three options are helping me throughout that, right? But the thing is, जब आप एक स्टोरेज से कनेक्शन बना लेते हो, when you have the connection with the storage account, so जब आप कोई डेटा ट्रांजेक्शन करते हो, for example, if I want to upload any data, so that data is actually going through the public network, which is internet. मेरे डिवाइस से वो डेटा इंटरनेट रूट फॉलो करते हुए स्टोरेज अकाउंट तक जाता है. क्यों? बिकॉज स्टोरेज अकाउंट इज वन ऑफ द पब्लिक सर्विस इन एज्योर. ये एज्योर में पब्लिक सर्विस है. Just like traffic manager is one of the public service, storage account is also one of the public service. So most of the platform as a service that we have in Azure infrastructure, most of them are public services. So क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है, सो द एंड पॉइंट ऑफ द स्टोरेज अकाउंट इज पब्लिक एंड पॉइंट. मीन्स जब मैं कोई रिक्वेस्ट स्टोरेज अकाउंट को सेंड करता हूं, तो इसका जो एंड पॉइंट है जहां पे मेरी रिक्वेस्ट ट्रिगर होती है, इन जनरल लैंग्वेज वी कॉल इट फ्रंट एंड. जैसे हमारे लोड बैलेंसर में फ्रंट एंड हुआ करता था. सो हियर वी हैव द पब्लिक आईपी. हियर वी हैव द पब्लिक आईपी एक्चुअली. तो इस फ्रंट एंड पे या फिर इस एंड पॉइंट पे, बिकॉज इट इज पब्लिक सर्विस, पब्लिक एंड पॉइंट, तो यहाँ पे पब्लिक आईपी होती है. इट इज अ पब्लिक आईपी.
सो व्हेन आई इनिशिएट द कनेक्शन, चाहे मैं एक्सेस की से करूँ, चाहे सैस से करूँ, चाहे इंट्रा आईडी ऑथेंटिकेशन से करूँ, दे आर प्रोवाइडिंग मी द सिक्योर कनेक्शन। बट जब मैं डेटा ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ, यानी कोई डेटा जब मैं अपलोड कर रहा हूँ, या कोई डेटा मैं वहां से एक्सेस कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई डेटा में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, एनीथिंग विच आई डू with respect to the storage account, the transaction is happening over the internet। पूरा कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू जाता है, फ्रॉम माई डिवाइस टू द स्टोरेज अकाउंट, विच इज अगेन नॉट सिक्योर ऑप्शन, जो कि सिक्योर नहीं है। So whenever we talk about any public service in Azure, any public endpoint in Azure, when we initiate the connection to that service, the connection goes through the internet। connection पूरा internet से जाता है। But I want to make it secure because this storage is very critical। storage तो critical है ना कंपनी का, it has some confidential data, very important business related information। तो आप इसको via public network या internet कैसे access कर सकते हो? That is unsecure। Looking at the confidentiality, when I access the data or when I upload something, when I make any transaction with the storage account, अगर मैं internet route follow करता हूँ या मैं public network पे इसको करता हूँ, so it is unsecure। So how to make it secure? So in order to make it secure, we can use the service endpoints। हम हम इस कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए सर्विस एंड पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। कैसे काम करता है सर्विस एंड पॉइंट? सो सर्विस एंड पॉइंट प्रोवाइड सिक्योर एंड डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द एज्योर सर्विसेज ओवर एन ऑप्टिमाइज रूट थ्रू द एज्योर बैकबोन नेटवर्क। सर्विस एंड पॉइंट क्या करता है? आपको जिस पब्लिक रिसोर्स से कनेक्ट होना है, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया कि हमें स्टोरेज अकाउंट से कनेक्ट होना है एज्योर के, so if you want to connect with the storage account in Azure, so what the service endpoint will do? Service endpoint will create a direct connection from the device, जिस डिवाइस से आप कनेक्ट हो रहे हो या जिस सर्वर से आप कनेक्ट हो रहे हो, उस सर्वर से लेके स्टोरेज तक वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ओवर द बैकबोन नेटवर्क ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, विच इज प्राइवेट नेटवर्क ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। कनेक्शन डज नॉट फ्लो ओवर द इंटरनेट। कनेक्शन इंटरनेट से नहीं जा रहा होता, अब सीधा माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना बैकबोन नेटवर्क है। इफ यू रिमेंबर द पेयरिंग प्रैक्टिकल्स, if you don't, then refer the previous videos of this playlist। So backbone network peering भी यूज करता है, बैकबोन नेटवर्क सर्विस एंड पॉइंट भी यूज करता है। तो सर्विस एंड पॉइंट्स क्या करता है? आप जिस सर्विस को एक्सेस करना चाहते हो, जिसके साथ भी आप कनेक्टिविटी बनाना चाहते हो, सर्विस एंड पॉइंट आपके डिवाइस या आपके सर्वर से उस रिसोर्स तक, उस पब्लिक एंड पॉइंट तक डायरेक्ट एक कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करता है यूजिंग द बैकबोन नेटवर्क ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, विच इज प्राइवेट नेटवर्क। तो अब क्या हो रहा है? अब जो आपका कनेक्शन है, अब जो भी आप डेटा ट्रांजेक्शन करोगे, डेटा अपलोड करना, डेटा डाउनलोड करना, कुछ भी करना, दैट विल फ्लो ओवर द बैकबोन नेटवर्क। वो सब कुछ बैकबोन नेटवर्क के थ्रू जाएगा, ना कि पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू। सो नाउ इट इज सिक्योर, इट इज सिक्योर ऑप्शन नाउ। सो ये किस तरीके से काम कर रहा है? तो एक तो आपका रूट भी ऑप्टिमाइज कर देता है ये। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम इन इंडिया, माय डिवाइस, माय सर्वर इज इन इंडिया, और मैं इंडिया से सपोज आई वांट टू मेक ए कनेक्शन टू द स्टोरेज अकाउंट इन एज्योर विच इज इन यूके साउथ, तो इंडिया से यूके साउथ के बीच में ऑप्टिमाइज रूट भी ये सेलेक्ट करता है कि किस रूट को फॉलो करते हुए, मतलब कौन से बैकबोन रूट को फॉलो करते हुए मेरा डेटा ट्रांजेक्शन होगा या मेरी कनेक्टिविटी होगी। सो दैट ऑल्सो डिसाइड्स बाय द सर्विस एंड पॉइंट। तो सर्विस एंड पॉइंट आपको अलाउ करता है सिक्योर क्रिटिकल एज्योर सर्विसेज को एक्सेस करने की थ्रू द वर्चुअल नेटवर्क्स। मतलब एज्योर का जो वीनेट है, हाउ डज इट वर्क? एज्योर में जो वीनेट है हमारा, एज्योर का जो वर्चुअल नेटवर्क है, ये उस वर्चुअल नेटवर्क के साथ, ये जो वीनेट है हमारा जो नेटवर्क है, उसके साथ डायरेक्ट हमारे रिसोर्स की कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करता है। मतलब जिस रिसोर्स को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, जैसे स्टोरेज अकाउंट को, तो ये उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करता है यूजिंग द बैकबोन नेटवर्क। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उस वीनेट के साथ जितने भी सर्वर्स कनेक्टेड है, the servers which are connected with that VNet, those servers will be able to access that resource in a secure manner using the backbone network। तो ये सारे रिसोर्स जो है, ये सारे सर्वर्स जो है, इन रिसोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं वाया द बैकबोन नेटवर्क। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स।
सो यू मस्ट नो दैट इट वर्क्स विद द वीनेट। ये वीनेट के रिसोर्सेज की डायरेक्ट कनेक्टिविटी करता है हमारे पब्लिक एंड पॉइंट्स यानी पब्लिक सर्विसेज के साथ। तो ये प्राइवेट आईपी कम्युनिकेशन करवाता है, पब्लिक आईपी के थ्रू ट्रैफिक नहीं जाता। इट मीन्स इट डज नॉट फ्लो ओवर द इंटरनेट, वो सीधा बैकबोन नेटवर्क के थ्रू जाता है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसमें एक लिमिटेशन है, द एंड पॉइंट इज स्टिल पब्लिक। एंड पॉइंट तब भी पब्लिक आईपी पे ही ऑपरेट हो रहा होता है, बट हमारे साइड से जो कनेक्शन जाता है वो प्राइवेट आईपी के थ्रू जाता है। तो ये किस किस के साथ यूज कर सकते हो आप? ये ऐसा नहीं है सिर्फ स्टोरेज अकाउंट्स के लिए बनाया गया है। जितने भी मोस्टली पब्लिक सर्विसेज है, अगर आप उनके साथ डायरेक्ट सिक्योर कनेक्शन करना चाहते हो तो आप सर्विस एंड पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। कौन सी सर्विस के साथ एज्योर में आप इसको यूज कर सकते हो? सो यू कैन यूज इट विद द एज्योर स्टोरेज, जैसा कि मैंने बताया, और हर रीजन में ये सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा क्रॉस रीजन सर्विस एंड पॉइंट्स स्टोरेज के साथ आप यूज कर सकते हो। सीक्वल डेटाबेस के साथ अगर आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी करनी है इन ए सिक्योर मैनर तो आप यूज कर सकते हो। सिनेप्स एनालिटिक्स करके एक टॉपिक है, अगर आपको सिनेप्स के साथ डायरेक्टली विच इज सीक्वल डेडिकेटेड पूल्स उसके साथ सिक्योर कनेक्टिविटी करनी है तो आप कर सकते हो। मारिया डीबी डेटाबेस के साथ करना है अगेन तब भी, कॉस्मोस डीबी डेटाबेस के साथ भी। कीबोल्ट जिसके अंदर आपके सीक्रेट्स अवेलेबल होते हैं, इंक्रिप्शन कीज अवेलेबल होती है, पासवर्ड्स अवेलेबल होते हैं आपके सोर्सेज के, उसके साथ अगर आपको एक सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो भी। तो ये सारी सर्विसेज के नेम है, सर्विस बस, इवेंट हब्स, ऐप सर्विस। इन सब के साथ जो है आप एक सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट्स। और आपको पता होना चाहिए कि किस किस के साथ कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स, बट मेजरली एटलीस्ट 4 to 5 नेम्स तो आपको याद होने चाहिए। बाकी आप always refer the documentation so that it will be there into your mind, क्योंकि कुछ नया भी आएगा, कोई नई सर्विस के साथ भी अगर इंटीग्रेशन होता है, you will have that information with you। सो बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिया। सिक्योरिटी इंप्रूव करता है ये, क्योंकि ये बैकबोन नेटवर्क यूज करता है। लेटेंसी, अगेन लेटेंसी भी यहाँ पे लो रहती है, क्योंकि बैकबोन नेटवर्क डायरेक्ट यूज हो रहा है तो यहाँ पे स्लोनेस के चांसेस बहुत ही रेयर है। सिक्योरिटी हाई है। ऑप्टिमल रूट फॉलो करता है, ये रूट खुद डिसाइड कर लेता है कि आपके बीनेट से आपके एजोर सर्विस तक कौन से रूट के थ्रू ट्रैफिक जाना चाहिए। सो इट इज वेरी गुड। लिमिटेशन मैंने आपको बताया था कि जो रिसोर्स है उसका जो एंड पॉइंट है वो अभी भी पब्लिक रहेगा। उसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा व्हेन आई विल टॉक अबाउट द प्राइवेट एंड पॉइंट्स इन द सेशन, तब मैं उसको बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली समझा के कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं फॉर द लैब, फॉर द सेटअप, मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट वन ऑफ द स्टोरेज अकाउंट फर्स्ट। मैं एक स्टोरेज अकाउंट बनाऊंगा, किसी भी रीजन में बना लो। आई विल मेक इट इन द यूके साउथ रीजन। और एक और चीज का ध्यान रखना, क्योंकि स्टोरेज अकाउंट में एक यूनिक नेम जाता है, वो इसके पीछे भी यही रीजन था, बिकॉज इट इज पब्लिक सर्विस, इसलिए हमको यूनिक नेम देना होता है, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है। ट्रैफिक मैनेजर यूनिक नेम देना होता है, पब्लिक सर्विस है। तो स्टोरेज अकाउंट मैं बनाने वाला हूँ यूके साउथ में, और इसके अंदर मैं एक कंटेनर बनाऊंगा, देन आई विल अपलोड सम डेटा जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकल। और उसके बाद जो है मैं एक वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा। इट कैन बी इन एनी रीजन, किसी भी रीजन में हो सकता है। सपोज मैं एक वीनेट बनाऊंगा यूके साउथ के अंदर ही बना लूंगा मैं भी इसको भी। और इसके अंदर मैं एक वर्चुअल मशीन बनाने वाला हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आफ्टर दिस आई विल सेटअप द सर्विस एंड पॉइंट। फिर मैं सर्विस एंड पॉइंट कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा एंड वी विल सी द सिक्योर कनेक्शन। सो लेट्स डू इट फास्ट। तो एज्योर पोर्टल पे चलते हैं, एंड हियर आई विल फर्स्ट क्रिएट वन ऑफ द स्टोरेज अकाउंट। क्रिएट पे क्लिक, प्रोसीजर आपको पता ही है। I will create a resource group, and here I will give a unique name. Mm, this one should be available. हो गया। Then it will be in the UK South. Performance में I will choose the general purpose version 2, and redundancy आपको पता लगी गई है अब। I will choose the LRS. Here I will not make any changes. Next, 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 and review plus create. So let's wait for the deployment.
डन। सो मेरा स्टोरेज रेडी है। हियर व्हाट आई विल डू, आई विल गेट इनसाइड दिस स्टोरेज। मैं इसके अंदर चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक कंटेनर क्रिएट कर देता हूँ। ये सब प्रोसेस आपको पता ही है। एक और चीज मैंने लास्ट टाइम बताई थी, इफ यू रिमेम्बर, कि अब ये फाइल शेयर जो है क्लासिक फाइल शेयर करके लिखा आता है स्टोरेज अकाउंट के अंदर, क्योंकि एसएमबी वाला जो फाइल शेयर है अब वो पुराना हो चुका है, मतलब क्लासिक बन चुका है, और एक नया फाइल शेयर आ चुका है विच इज सपोर्टेड ऑन द एनएफएस प्रोटोकॉल। मैंने इस पे एक सेशन लिया भी था, एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग द फाइल शेयर। तो पहले ये डायरेक्ट फाइल शेयर था, लेकिन अब ये क्लासिक फाइल शेयर करके पोर्टल पे अपडेट हो चुका है। नाम चेंज हो गया है इसका, इसी ईयर से हुआ है बेसिकली ये। तो कंटेनर का नाम दे देते हैं, कॉन्डी 01 दे देता हूँ मैं, कुछ भी दे दो। देन इनसाइड दिस कंटेनर आई विल अपलोड सम डेटा। इसके अंदर कुछ डेटा अपलोड कर देते हैं, जैसे जैसे यही कर देते हैं। डन। सो डेटा हैज बीन अपलोडेड। नाउ व्हाट आई विल डू, now I will create one of the virtual network in the UK South region, and inside that VNet I will create one virtual machine. So let's do it. So I will search for the VNet now. Create, इसका प्रोसेस भी पता है आप लोगों को। Here I will give the name VNet-01. It will be in the UK South again. Next, next. And here you can modify the address space and address range. आप अपने सबनेट और एड्रेस स्पेस को मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आई विल लीव इट एज इट इज। जो भी डिफॉल्ट आ रहा है मैं रहने दूंगा, बट कंपनी में मैंने समझाया था एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। टैक्स इफ यू वांट, कंपनी में मैंडेटरी है, यहाँ पे तो ऑप्शनल है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स। So this deployment is also done. Now I will deploy the virtual machine inside it. इसके अंदर में मैं एक VM डिप्लॉय करने जा रहा हूँ अब। सो आई विल गो टू द वर्चुअल मशीन्स, चूज द रिसोर्स ग्रुप, VM नेम आई विल गिव VM-01 इन द UK साउथ। और अवेलेबिलिटीज आप अपने हिसाब से ले सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। विंडोज सर्वर 2019 ले लेता हूँ मैं, विद 2 कोर्स ऑफ CPU, 8 GB रैम, क्योंकि हमें इसमें स्टोरेज का टूल भी इंस्टॉल करना है। 3.5 GB रैम में भी चल जाएगा, बट इट विल नॉट गिव मी दैट मच परफॉर्मेंस, तो इसलिए 8 GB रैम इज फाइन। 3389 आई विल इनेबल। देन नेक्स्ट, एंड इसको मैं स्टैंडर्ड SSD कर देता हूँ, यू नो द यूज केसेस ऑफ दिस। एंड आई वांट टू कनेक्ट दिस विद VNet-01, और ये IP लेगा डिफॉल्ट सबनेट से। देन रिव्यू प्लस क्रिएट। वेट करते हैं।
So this deployment is also done. Now I have one virtual machine. मेरे पास एक VM रेडी है. इसका रिमोट ले लेते हैं. And let's install the Azure Storage Explorer tool so that I can connect with the storage account. मुझे स्टोरेज से कनेक्ट होना है, तो स्टोरेज एक्सप्लोरर का टूल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. कर लेते हैं. लेट्स कनेक्ट. अरे, एंटर द पासवर्ड ऑफ द VM. नाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर दिस VM. इसकी सेटिंग्स वगैरह करते हैं. नाउ लेट्स वेट फॉर इट टू लोड. लोड होने का वेट करते हैं, देन यहाँ पे हम टूल डाउनलोड करेंगे. ओके. नाउ आई विल ओपन द ब्राउजर एंड हियर लेट्स कॉन्फ़िगर दिस एज वेल. ओके. यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर. ये सब प्रोसेस भी आपको पता ही है. डाउनलोड. नहीं पता है, देन यू शुड नो अबाउट इट. तो डाउनलोड पेज कौन सा है? एमएसटी एज्योर साइट, दिस इज नॉट द वन. ये वाला. इस पे चलते हैं और डाउनलोड पे जाते हैं एंड वी विल डाउनलोड द टूल. तो डाउनलोड नाउ फॉर द विंडोज. और अब करते हैं इसको इंस्टॉल. इंस्टॉलेशन डाउनलोड डन हो गया. अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ. सो आई विल जस्ट ओपन दिस. और इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी आपको पता ही है. इंस्टॉल फॉर मी. डॉट नेट का फ्रेमवर्क इसको चाहिए होता है, तो विंडोज सर्वर में ऑलरेडी अवेलेबल है. नहीं है इन केस, तो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है. तो इंस्टॉल. सी इट रिक्वायर्स डॉट नेट 10.0.4, मीन्स 10.0.4 वर्जन चाहिए इसको. तो इंस्टॉल होने देते हैं इसको. देन आई विल इनिशिएट द कनेक्टिविटी टू द स्टोरेज. तो जो बाय डिफॉल्ट हमने सीखा था, उस प्रोसेस को फॉलो करके हम पहले कनेक्शन करेंगे, देन फिर मैं उसमें सर्विस एंड पॉइंट इंटीग्रेट करूंगा. तो नेक्स्ट. नेक्स्ट एंड इंस्टॉल. स्टोरेज एक्सप्लोरर का वर्जन इस टाइम लेटेस्ट है 1.43.0.
बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं ये। एंड व्हेन यू डाउनलोड इट फ्रॉम द साइट तो हर हर टाइम वो फिर लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करता है। तो फिनिश। तो टूल ओपन हो रहा है। या नाउ आई विल कनेक्ट विद माय स्टोरेज। तो स्टोरेज से कनेक्ट होने के लिए वी कैन यूज एनी ऑफ द ऑप्शन। एक्सेस की के थ्रू कर लो, सैस के थ्रू कर लो, इंट्रा आईडी ऑथेंटिकेशन के थ्रू कर लो। हमने तीनों को डिस्कस किया था जब हम स्टोरेज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, एंड वी हैव सीन द प्रैक्टिकल स्टेप्स एज वेल। सो कुछ भी ले सकते हैं आज फिलहाल हम। ऑल ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस आर हाईली सिक्योर ऑप्शंस। मैं अपने स्टोरेज पे चलता हूँ एंड आई विल टेक द एक्सेस की। सेम स्टेप है, एक्सेस की से करो, सैस से करो, सब आपको पता ही है। सो आई विल टेक द एक्सेस की एंड कॉपी दिस, गो हियर, और यहाँ पे अटैच टू ए रिसोर्स। स्टोरेज अकाउंट से कनेक्ट होना है हमें, सो आई विल चूज स्टोरेज। एक्सेस की के थ्रू होना है, सो अकाउंट नेम एंड की, देन नेक्स्ट। हियर आई विल पेस्ट माई एक्सेस की। कॉपी हुआ नहीं है आई थिंक। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, वो इसलिए पेस्ट नहीं हो रहा बिकॉज ड्यूरिंग द रिमोट कनेक्शन आई हैव नॉट इनेबल्ड द क्लिपबोर्ड। एक मिनट, मैं दोबारा इनेबल कर देता हूँ इसको। सी दिस वन, इन्होंने चेंजेस कर दिए है ना अब, सो आई हैव टू इनेबल द क्लिपबोर्ड ड्यूरिंग द रिमोट एक्सेस ताकि कॉपी पेस्ट हो सके। कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं एंड यू हैव टू कंप्लाई विद दैट। उस टाइम पे फिर एक्सपीरियंस एंड रिसर्च काम आता है। सो अटैच टू ए रिसोर्स अगेन, क्लिक करते हैं एंड हम स्टोरेज से कनेक्ट होना चाहते हो यूजिंग द एक्सेस की। तो नेक्स्ट, देन पेस्ट करते हैं की। हो गया। अब यहाँ पे अकाउंट नेम में वी नीड टू कॉपी पेस्ट द स्टोरेज अकाउंट नेम, तो स्टोरेज का नाम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और डिस्प्ले नेम में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, सो आई विल लीव इट एज इट इज। एडिट करना है तो कर सकते हो। देन नेक्स्ट, देन कनेक्ट। तो अब मैं अपने स्टोरेज से कनेक्ट हो गया यूजिंग द एक्सेस की। मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे मेरे सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। सी, आई एम एबल टू सी माई ब्लॉब फाइल शेयर क्यूज एंड टेबल्स। मैं अगर ब्लॉब में गया तो मुझे मेरे कंटेनर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सी, जो मैंने कॉन्डी 01 बनाया वो भी यहाँ पे आ रहा है, और उसके अंदर दो फाइल्स अपलोडेड है तो वो भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड यू नो आई कैन अपलोड समथिंग, आई कैन डिलीट, आई कैन मॉडिफाई, मेरे पास एक्सेस है अभी। नाउ इफ यू सी, इफ यू गो टू द स्टोरेज अकाउंट, तो स्टोरेज अकाउंट में जब आप जाओगे और अपना स्टोरेज ओपन करोगे तो यहाँ पे अंडर द नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में हमने डिफॉल्ट ऑप्शन रहने दिया था, इफ यू रिमेंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश किया था। तो वहां पे आप देख पा रहे हो कि जो पब्लिक नेटवर्क एक्सेस है इट इज इनेबल्ड फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स, विच इज नॉट ए गुड आइडिया। आपने पब्लिक नेटवर्क इनेबल कर रखा है, मतलब हर लोकेशन से इसका एक्सेस आपने इनेबल कर रखा है। इट इज इनेबल्ड फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स, और इसकी वजह से ही आपका जो कनेक्शन है इट इज गोइंग थ्रू द पब्लिक नेटवर्क, इट इज गोइंग थ्रू द इंटरनेट। सबसे पहले हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? आई विल रिस्ट्रिक्टेड यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर वीनेट को अलाउ करेंगे कि उसी वीनेट के जो सर्वर्स है उन्हीं के थ्रू हम स्टोरेज को एक्सेस कर पाए। सो लेट्स डू इट। सो सर्विस एंड पॉइंट बनाने के लिए यू नीड टू गो टू द वीनेट, क्योंकि सर्विस एंड पॉइंट वीनेट से इंटीग्रेट होता है आपके रिसोर्स के साथ। जिस रिसोर्स को आप एक्सेस करना चाहते हो, इस लिस्ट में कोई भी रिसोर्स, ये इनमें से कोई भी रिसोर्स जिसके साथ आपको सिक्योर एंड डायरेक्ट कनेक्टिविटी करनी है यूजिंग द बैकबोन नेटवर्क, तो आप वो बीनेट के थ्रू करोगे, मतलब बीनेट से इन रिसोर्सेज के साथ कनेक्टिविटी। तो हमें हमारे वीनेट पे जाना है, तो वी नीड टू गो टू अवर वीनेट, और वीनेट से एक कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। तो मेरा जो वीनेट है, वीनेट 01, इसी के अंदर मेरी वर्चुअल मशीन चल रही है, VM01। इफ यू गेट इनसाइड दिस एंड इफ यू गो टू द कनेक्टेड डिवाइसेस, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा VM01 इसी के अंडर में चल रहा है। तो मुझे इस पूरे वीनेट के थ्रू एक्सेस देना है कि मैं इस स्टोरेज के साथ सिक्योरली कनेक्ट हो जाऊं यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट। तो उसके लिए मैं वीनेट में जाऊंगा, देन आई विल स्क्रॉल इट डाउन।
देन आई नीड टू गो टू द ऑप्शन कॉल्ड सर्विस एंड पॉइंट्स। मैं यहाँ पे जाऊंगा। अभी तक कोई सर्विस एंड पॉइंट नहीं है। यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड। ऐड पे क्लिक करोगे आप, और किस सर्विस कहाँ कनेक्ट होना चाहते हो, तो देखो ये सब वही नाम है जो इस डॉक्यूमेंटेशन में दिए गए हैं, इतनी चीजों को ये सपोर्ट करता है। तो इनमें से किसके साथ आपको सिक्योर कनेक्टिविटी करनी है, तो वो चीज वो सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। सो आई वांट टू कनेक्ट विद द स्टोरेज, तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डॉट स्टोरेज की सर्विस चूज करूंगा। अगर आपको कीवर्ड से होना होता तो कीवर्ड चूज करते, एसक्यूएल से करना होता देन सीक्वल सर्विस। तो आई वांट टू कनेक्ट विद द स्टोरेज, सो आई विल चूज द स्टोरेज। फिर एक ऑप्शन आता है सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसीज, जो मैं डिस्कस करूंगा। अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। फिर आपके वीनेट में मल्टीपल सबनेट्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मेरे वीनेट में एक से ज्यादा सबनेट हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही है और यही सबनेट मेरे वर्चुअल मशीन्स को आईपी दे रहा है, बट हो सकता है एक से ज्यादा हो। तो इन एक से ज्यादा सबनेट्स में से आप किस सबनेट को अलाउ करना चाहते हो, मतलब कौन से सबनेट में जो वर्चुअल मशीन्स कनेक्टेड है वही वर्चुअल मशीन्स आपके स्टोरेज से कनेक्ट हो पाएगी। सो हमारे केस में एक सबनेट है, हम इसको अलाउ कर रहे हैं। इन केस मल्टीपल सबनेट्स है, तो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट कंपनी किसको अलाउ करना चाहती है वो उसको अलाउ करेगी। इवन आप सबको करना चाहते हो तो आप सबको भी ऐड कर सकते हो। तो मैं ऐड पे जाके देन आई विल चूज द सर्विस माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज। और सबनेट में मैं चूज करूंगा कि डिफॉल्ट सबनेट में जितने भी वर्चुअल मशीन्स है उन वर्चुअल मशीन्स के थ्रू हमारे स्टोरेज के साथ, मतलब ये जो स्टोरेज है इसके साथ सिक्योर कनेक्शन ओवर द सर्विस एंड पॉइंट स्टैब्लिश किया जा सके। सो आई विल चूज द डिफॉल्ट सबनेट। और आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो बाद में, इन केस यू हैव टू ऐड मोर सबनेट और इफ यू हैव टू चेंज इट यू कैन डू दैट। ऐड। तो एक सर्विस एंड पॉइंट ऐड होगा यहाँ पे अब। तो सर्विस एंड पॉइंट ऐड हो गया यहाँ पे, एंड यू कैन सी द डिटेल कि आपने स्टोरेज, इस वीनेट को स्टोरेज के साथ इंटीग्रेट करने के लिए सर्विस एंड पॉइंट क्रिएट किया है, और आपने सिर्फ एक ही सबनेट अभी इसमें ऐड किया है, और कनेक्शन इज सक्सेसफुल। और देखो ये ऑप्टिमल राउटिंग यूके साउथ एंड वेस्ट के थ्रू दिखा रहा है, मतलब आपका स्टोरेज यूके साउथ में है, बट इन केस अगर यूके साउथ तक नहीं पहुंच पाते हैं, इन केस देर इज सम इशू विद द रूट, तो ये यूके वेस्ट को फॉलो करते हुए भी आपको आपके लोकेशन तक पहुंचा देगा, बिकॉज यूके साउथ एंड वेस्ट आर द पेयर्ड रीजन्स। तो आपने थ्योरी में देखा भी था, इट यूजेस द ऑप्टिमल रूट। तो इसलिए ये दो पेयर्ड रीजन चूज कर रहा है कि अगर इन केस यहाँ पे कोई लेटेंसी या कोई कंजेशन है देन इट कैन फॉलो दिस रूट एज वेल। अब वो कैसे करेगा, इट विल थ्रू द बैकबोन नेटवर्क। दैट इज द यूज केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, हाउ दे प्रोसीड विद इट। तो इन केस यू वांट टू एडिट दिस, आप इस पे क्लिक करके देन इसको डिलीट कर सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट अभी स्टोरेज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन चूज द डिलीट ऑप्शन। सो अब सर्विस एंड पॉइंट बन चुका है। एंड हियर इफ आई गो टू माई स्टोरेज अकाउंट, तो स्टोरेज के साथ अभी मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया है, यहाँ पे बस मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया है कि मैं अपने स्टोरेज के साथ वीनेट को सर्विस एंड पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करना चाहता हूँ, बट कौन सा स्टोरेज, किस स्टोरेज के साथ। दिस आई हैव इनेबल्ड दिस फॉर द कंप्लीट स्टोरेज, कि जितनी भी स्टोरेज सर्विस है उसके साथ वीनेट को इंटीग्रेट किया जाए यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट, बट कौन सा स्टोरेज। सो वो अब आपको स्टोरेज अकाउंट लेवल पे जाके करना पड़ेगा कि किस स्टोरेज पे आप इस वाले सर्विस एंड पॉइंट को इंटीग्रेट करना चाहते हो। सो यू नीड टू गो टू द स्टोरेज अकाउंट जिसके साथ आप इंटीग्रेट करना चाहते हो फॉर द बैकबोन कनेक्टिविटी। स्टोरेज ओपन करेंगे हम, एंड यू नीड टू गो टू द नेटवर्किंग ऑप्शन। इंटीग्रेट करने से पहले अभी देखो पब्लिक नेटवर्क इनेबल्ड है, आप मैनेज पे जाओगे, और अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं तो ये सारे के सारे इनबाउंड कनेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब किसी भी तरीके से ट्रैफिक को आपके स्टोरेज तक नहीं आने देगा। मुझे सर्विस एंड पॉइंट यूज करना है, तो सर्विस एंड पॉइंट यूज करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ता है। देखो पब्लिक नेटवर्क एक्सेस इज बाय डिफॉल्ट इनेबल फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स, बट मुझे सिर्फ सेलेक्टेड नेटवर्क से अलाउ करना है। सेलेक्टेड नेटवर्क मतलब मेरे वी नेट से अलाउ करना है। अभी मैं अपने सर्विस एंड पॉइंट को ऐड नहीं कर रहा, अभी मैंने सिर्फ इसको क्या किया, इनेबल फ्रॉम सेलेक्टेड नेटवर्क्स। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, मैंने अभी सिलेक्टेड नेटवर्क रेफर नहीं किए हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, बट मैंने यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क एक्सेस बंद कर दिया है, और मैंने क्या इनेबल किया है, इनेबल्ड फ्रॉम सेलेक्टेड नेटवर्क, कि सिर्फ सेलेक्टेड नेटवर्क से ही ट्रैफिक आएगा। तो जैसे ही मैंने ये इनेबल किया, एंड इफ आई गो इनसाइड माई स्टोरेज, इनसाइड माई वीएम, और यहाँ पे अगर मैं टूल ओपन करता हूँ एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर,
अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। पहले तो ये देखते हैं इम्प्लीकेशंस क्या होंगे जैसे ही मैंने एक्सेस पब्लिक बंद किया तो टूल ओपन हो गया। और देखते हैं कि अब मैं स्टोरेज पे कनेक्ट हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने पब्लिक एक्सेस ही बंद कर दिया है तो रिस्ट्रिक्शन लग गया है अब। देखो ये स्टोरेज था, एक्सपेंड इट। ये मेरा स्टोरेज था, एक्सपेंड। ये मेरा ब्लॉब। एंड देयर इज वन एरर, 403 फॉरबिडन एरर, कि आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है। क्योंकि मैंने वहां पे रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि पब्लिक नेटवर्क से आप कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो एक्सेस की यूज कर रहा हूं मैं, बट स्टिल आई एम रिस्ट्रिक्टेड, आई डोंट हैव द राइट्स। 403 एरर, फॉरबिडन, ऑथराइजेशन फेलियर, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। अब मुझे क्या करना है, मैंने इनेबल तो कर दिया कि सिलेक्टेड नेटवर्क से आप स्टोरेज एक्सेस कर सकते हो, बट कौन सा सिलेक्टेड नेटवर्क? तो मैं इस वीएम को एक्सेस देना चाहता हूँ। ये वीएम कहाँ पे है? दिस वीएम इज द पार्ट ऑफ वीनेट 01। ये वीनेट 01 में है ना, इफ यू सी, सी वीएम 01 में। तो मुझे वीनेट 01 को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस स्टोरेज के साथ। तो स्टोरेज पे जाओ, नेटवर्किंग पे जाओ, गो टू द मैनेज अगेन, और इनेबल्ड फ्रॉम सिलेक्टेड नेटवर्क जो आपने किया था ये वाला, इसमें अब आपको वीनेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से नेटवर्क से, वीनेट मतलब नेटवर्क, एजोर नेटवर्क, तो कौन सा एजोर नेटवर्क को एक्सेस होगा कि वो आपके इस स्टोरेज को एक्सेस कर सके। सो ऐड ए वर्चुअल नेटवर्क पे आप क्लिक करोगे, और मेरे पास ऑलरेडी एक वीनेट है, नया बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ऐड एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क मैंने चूज किया। देन कौन सा वीनेट? तो वीनेट 1, वीनेट 1 को अलाउ किया जाए। वीनेट 1 में किस सबनेट को? तो एक ही सबनेट है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट सबनेट में जितने भी वर्चुअल मशीन्स है, दे शुड बी एबल टू कनेक्ट विद दिस स्टोरेज अकाउंट इफ दे हैव द एक्सेस की, SaaS और एजोर एडी ऑथेंटिकेशन। ये भी ध्यान रखना, वही वर्चुअल मशीन स्टोरेज के साथ कनेक्ट हो पाएगी जिनके पास एक्सेस की, SaaS और एजोर एडी ऑथेंटिकेशन एक्सेस होगा। सो आई विल चूज द सबनेट, देन ऐड। तो यहाँ पे मेरा वर्चुअल नेटवर्क एंड सबनेट ऐड हो चुका है, एड्रेस रेंज दिखाई दे रही है मेरे को मेरे वीनेट की। देन क्लिक ऑन सेव। तो मैंने एक्सेस इनेबल कर दिया है फ्रॉम द सेलेक्टेड नेटवर्क इस नेटवर्क के साथ। अब अगर मैं इस वीएम में जाता हूँ, क्योंकि ये वीएम वीनेट 1 का पार्ट है, और अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, सी आई एम एबल टू सी माई कंटेनर्स, आई एम एबल टू सी माई डेटा एज वेल, एंड आई हैव द राइट्स। दिस इज हाउ द सर्विस एंड पॉइंट वर्क्स। तो बैकबोन नेटवर्क पे मेरी कनेक्टिविटी हो रही है, एंड इफ आई रिमूव दिस, देन अगेन द कनेक्शन विल गेट ब्रेक। मैं इसको अगर बंद कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। इनेबल्ड फ्रॉम सेलेक्टेड नेटवर्क, देन यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये कनेक्शन सिंक होने के बाद इट विल गेट रिमूव। थोड़ा टाइम लेगा, देन इट विल गेट रिमूव। एक्सेस मेरा बंद हो जाएगा। सी नो डेटा अवेलेबल, और ये भी अभी कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा। नाउ एक और ऑप्शन है यहाँ पे, सर्विस एंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, बट देर इज वन मोर ऑप्शन। इफ आई गो टू द मैनेज अगेन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर आईपी से अगर कोई रिक्वेस्ट आपके स्टोरेज पे आती है तो उसको स्टोरेज पे कनेक्ट होने दिया जाए, बट दिस इज फॉर द पब्लिक एंड पॉइंट एक्सेस। तो ये सर्विस एंड पॉइंट की तरह काम नहीं करता। इट विल जस्ट गिव द एक्सेस टू योर क्लाइंट आईपी टू कनेक्ट विद द स्टोरेज। तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे ये मेरा पब्लिक आईपी दिखा रहा है, देखो, इफ आई एंटर माई पब्लिक आईपी हियर, देन आई विल बी एबल टू एक्सेस इट। अगर आप किसी भी सर्विस का पब्लिक आईपी यहाँ पे एंटर करके सेव करते हो, देन दैट पर्सन विल बी एबल टू एक्सेस इट। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इनेबल फ्रॉम सेलेक्टेड नेटवर्क्स कर दिया था, एंड इफ आई गो टू द कंटेनर्स, देखो मैं कंटेनर का डेटा नहीं देख पा रहा, मैं खुद नहीं देख पा रहा, इवन दो आई एम द एडमिन ऑफ द एज्योर पोर्टल, मैं नहीं देख पा रहा। सी आई डोंट हैव द एक्सेस। इवन अगर मैं स्टोरेज ब्राउजर में जाके भी ट्राई करूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू सी माई डेटा। सी ये देखो, क्योंकि मैं क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। इफ यू रिमेंबर, नेटवर्किंग में जाके इनेबल्ड फ्रॉम सेलेक्टेड नेटवर्क, तो सेलेक्टेड नेटवर्क में मेरे लैपटॉप की डिटेल्स नहीं है। दैट इज वाई आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इट।
मैंने वीनेट वन को एक्सेस दिया था, वीनेट वन में जितने सर्वर्स है दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद माई स्टोरेज, बट मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। दिस इज हाउ इट सिक्योर, दिस इज हाउ इट प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी। इतना सिक्योरिटी देता है ये। अगर मैं अपने आप को भी एक्सेस देना चाहता हूँ देन या तो मैं अपने नेटवर्क को अलाउ करूँ, या तो ये जो ऑप्शन है मैं अपना आईपी यहाँ पे वाइट लिस्ट कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा पब्लिक आईपी दिखा रहा है, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, और भी किसी का करना है और भी कर लो, सेव करो, तो मैं अपने आप को भी एक्सेस दे पाऊंगा। अब मैंने अपने आईपी को ऐड कर दिया। नाउ आई शुड बी एबल टू सी द डेटा। मैं कंटेनर में जाके देन आई कैन चेक द डेटा। सी अब दिख रहा है मुझे, एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो आई वुड बी एबल टू सी इट। तो ये सर्विस एंड पॉइंट से थोड़ा एक और टॉपिक था विच आई डिस्कस्ड। एक और चीज, सर्विस एंड पॉइंट इज फ्री। माइक्रोसॉफ्ट डज नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द सर्विस एंड पॉइंट। तो आप इसको यूज कर सकते हो बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो इनकरेजेस द सिक्योरिटी। तो एमएफए भी फ्री है, सर्विस एंड पॉइंट भी आपका फ्री है, सो वी कैन यूज इट। सो होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। अब आपको समझ में आया होगा प्रैक्टिकली हाउ द सर्विस एंड पॉइंट वर्क्स। So you have to remember the point. It will provide the secure connectivity through the Azure backbone network from your VNet to the public service. Public service कौन कौन सी है, तो ये पूरी लिस्ट है। तो इसका lab I want you to again recreate in your environment and do it. In the next session, I will be discussing about the private endpoints and service endpoint policies. So hope you understood this. Hope you like this video. In case this is helping you, then don't forget to subscribe the channel and hit the notification bell icon. I will see you in the next video. So for now, take care. Bye.